السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہے اس پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 25 ہے. آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کھانے پینے سے متعلق کیا چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہیں. کھانے پینے سے متعلق یہ کہ کھانا کیا منع ہے وہ بات کریں گے. جو کھانے کے وقت پر کیا چیزیں منع ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ کھانے کے جو برتن ہیں وہ سونے چاندی کے نہیں ہونا چاہیے. بعض خیر ہم لوگوں کے علاقے میں تو بہت کم ہے، لیکن جہاں پہ کبھی بادشاہوں کے یہاں یا بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو زیادہ بل آتے ہیں اس میں ایک چیز کا یہ بھی اہتمام ہوتا ہے کہ چاندی کی پلیٹیں رکھی جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ چاندی یا سونے کی پلیٹ میں کھانا کھایا جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو عربوں کا جو طریقہ ہے کھانا کھانے کا وہ انفرادی طور پر پلیٹ میں لے کر کھانے کا طریقہ نہیں ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو پسند فرمایا. تو گویا کہ یہ جو تہذیب جو کلچر عربوں کا چلا آ رہا تھا اسی کو اللہ کے رسول نے اسلامی کلچر بنا دیا. تو اب جو ہے وہ ایک ساتھ کھانا کھانا جیسے جماعت کے لوگ کھاتے ہیں، یہ کھانا کھانا سنت طریقہ ہے. یہ جو انفرادی طور پر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں یہ حقیقت میں کیا ہے، یہ برہمنوں کا کھانے کا طریقہ ہے. کیونکہ ان کے یہاں چھوا چھوت کا معاملہ ہے کہ کوئی جھوٹا نہیں چھو سکتا، کوئی جھوٹا کھا نہیں سکتا، وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، لہذا انہوں نے سب کی پلیٹیں الگ کر دی. شروع سے ان کے یہاں اس بات کا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کے سامنے ایک گلاس ہوگا اور ایک لوٹا ہوگا اور ایک پلیٹ ہوگی. یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. بہرحال اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھ پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھایا جائے. جب ایک ساتھ پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھایا جائے تو پھر اس کے دو بنیادی آداب اللہ کے رسول نے بتائے اور ان کو دو چیزوں سے منع فرمایا. پہلی بات تو یہ کہ کھانا جب رکھا ہوا ہے تو بیچ میں سے کھانا نہ کھایا جائے، کیونکہ اس کی علت بھی آپ نے بیان فرمائی کہ کھانے میں جو برکت ہے وہ پروردگار عالم بیچ میں کرتا ہے. اگر آپ اکیلے پلیٹ میں بھی کھا رہے ہیں تو آپ اپنے سامنے سے کھائیں، بیچ سے نکال کر کے کھانا نہیں کھائیں. اور اس کے لیے کیا ہے کہ بچوں کو شروع سے منع کرنا چاہیے، تب وہ جو ہے کنارے سے کھانا کھاتے. تو ایک تو بات یہ منع ہے کہ بیچ سے کھانا کھایا جائے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ ہمارے سامنے جو ہے اس کھانے کو کھایا جائے. سامنے والے کا جو کھانا ہے اس کو اٹھا کر کے وہاں سے ادھر رکھنا، یہ جو ہے اس سے آپ نے منع فرمایا ہے. بعض لوگ ہوشیاری کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر پلیٹ میں آئی یا گوشت یا چاول ایک ساتھ، اب انہوں نے دیکھا ادھر اچھی بوٹی ہے تو منع ہے، انہوں نے کیا کیا پلیٹ گھما کر کے اس کو آگے کر لیا. یہ زیادہ اسمارٹ بننے کی بات ہے. یہ بھی اسی حکم میں ہے کہ کھانے کو جو ہے وہ دوسرے کے کھانے کو اپنے آگے کیا گیا، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے منع فرمایا. کسی کی مجبوری ہو وہ الگ بات ہے، ورنہ بائیں ہاتھ سے کھانا سے. اور وجہ بیان فرمائی کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کھاتا ہے، اس لیے بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے. اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے منع فرمائی. یہ جو بفے سسٹم چلا ہے شادی بیاہوں میں اور لوگ کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، اس میں اچھے لوگ آپ دیکھیں کہ اب آج کل کھانے کے بعد چائے کا ایک رواج چلا ہے آپ کے یہاں اس علاقے میں. تو کھانا بھی اگر بیٹھ کر انہوں نے کھایا ہے تو چائے تو کھڑے ہو کر پینی ہی پینی ہے. بات وہی ہے، بات وہ بھی وہی ہے کہ اچھا اب جیسے مولانا صاحب پہنچے، مولانا صاحب کے لیے آپ بیٹھنے کا انتظام کر رہے ہیں. میں مولانا صاحب کے لیے الگ شریعت نہیں ہے. اس کا مطلب آپ جان رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر چائے پینا منع ہے، کیوں مولانا صاحب کو آپ کرسی لا کر کے دے رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو علم ہے. تو یہ کیا ہے کہ کھڑا ہو کر کھانا بھی منع فرمایا گیا ہے اور کھڑے ہو کر پینا بھی منع فرمایا گیا ہے. اسی طریقے کھانے کے سلسلے میں جو ہے وہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا منع ہے. ٹیک ہر طریقے کے ٹیک ہو سکتی ہے کہ مطلب جیسے آپ دائیں بازو ٹیک لگا لیں، بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا لیں،
या ये कि आधा जो है पीठ कमर के बल टेक लगा ले और खाना खाते रहें। अल्लाह के रसूल फरमाया ये मुतकब्बिरीन की अलामत है, ये तकब्बुर करने वालों की अलामत है कि खाना टेक लगा करके खाते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जैसे फल है और आप टेक लगाए बैठे हुए हैं और ऐसे में फल अगर खाने की बात है तो अबू दाऊद शरीफ की एक रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे और फल आप खा रहे थे। तो इस किस्म की कोई चीज सूखी चीज ऐसी है जैसे मूंगफली खा रहे हैं या कोई चीज ऐसी, तो टेका लगा करके जो है वो खाया जा सकता है। लेकिन खाना जो है इस शक्ल में खाना जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसी तरीके से मजमूद रवायत की रवायत है, वो जो ऊपर वाली बात भी कही वो दाउदुल मात अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बाजार में खाना खाना अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इससे में मना फरमाया कि बेहयाई है। बाजार में खाना खाने का मतलब क्या है कि आप देखते हैं कि औरत मर्द सभी लोग फुटपाथ पे खड़े होकर के पानी पूरी खा रहे हैं। ये जो खाना है ये मना किया गया है। बाजार में बैठकर कहीं आप खा रहे हैं, होटल में बैठकर खा रहे हैं, अंदर खा रहे हैं, कोई मत। लेकिन ये जो फुटपाथ पे सिस्टम चला गया है और वहीं पर उन्होंने टेबल लगा दिया, वहीं पे खाना खाया जा रहा है, ये इस्लामी तरीका नहीं है, ये बेहयाई। अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया किस तरीके से खाना खाना बेहयाई है। ये सारी चीजें हम लोगों को ना मालूम होने की वजह से भी होती हैं। ऐसा नहीं है, अगर एक मरतबा आदमी को मालूम हो जाएगा तो इन चीजों से वो एहतियात कर सकता है, लेकिन वो इन चीजों को जानता ही नहीं बेचारा कि ये भी कोई मना हो सकता है। लिहाजा मुहद्दिसीन तो इतना एहतमाम करते थे कि अगर कोई आदमी रास्ता चलते चलते केला खा लेता तो उससे हदीस नहीं लेते थे। कहते थे इस आदमी के अंदर तहजीब ही नहीं है। तो अगर कभी ऐसा आदमी जब रिवायत की जाती है उनके बारे में लिखा जाता है तो मुहद्दिसीन उस पर कमेंट करते हैं कि नहीं, ये आदमी के अंदर शराफत नहीं है। तो ये भी मतलब तहजीब के खिलाफ है कि चलते चलते खाना, तो उसमें दो चीजें, एक तो चलते चलते खाने की बात है और यकीनी बात है जब आप चलते चलते खाएंगे तो खड़े होकर खाएंगे, तो दोनों चीजें क्या है वो मना है। इसी तरीके से जूता पहने पहने खाना खाना मना है। अगर आप कहीं शादी में जाते भी हैं तो आप जूता उतार कर खाएं खाना, मतलब जूता उतार दे आप उसके ऊपर पैर रखे रहें और खाना खाएं, चप्पल उतार दे उसके ऊपर पैर रख करके खाना खाएं। किसके ऊपर? चप्पल के ऊपर। लेकिन दारमी की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद नहीं फरमाते थे कि खाना खाना जो है वो जूता पहनकर हो। हालांकि ये मुश्किल मसला है लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। मौथानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जो है वो फंस गए एक जगह, अब वहां पे उनको कुर्सी पर बैठकर ही खाना था, तो कोई शक्ल ही नहीं थी खाना खाने की। अच्छा, अब अगर वहां पर आप हंगामा करें कि हम कुर्सी पर बैठकर नहीं, कुर्सी पर बैठकर खाना खाने से मना नहीं किया गया है, ये नोट कर ले बात। कुर्सी पर खाना खाने से मना करने की कोई हदीस नहीं है। ये अलग बात है कि जमीन पर बैठकर खाना क्या है, सुन्नत है, लेकिन कुर्सी पर कोई बैठकर खाना खा रहा है तो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में कुर्सी पर बैठकर खाना खाना ज्यादातर अंग्रेजों का एक सिग्निफिकेशन था, उनकी एक अलामत थी। अब तो खैर ये बात क्या हो गई है, कॉमन सी हो गई है। तो हजरत ने क्या किया कि दोनों काम किया कि जूता उतारा और जूता उतार करके कुर्सी पर पलथी मार कर बैठ गए, जैसे हम बैठे हुए ना ऐसे पलथी मार करके कुर्सी पर बैठ गए कि दोनों तरीके से मुखालफत हो जाना, जूता भी उतर जाना और इनका जो तरीका है कि पैर लटका कर बैठकर खाना उसके भी खिलाफ वर्जी हो जाना। तो ऐसी जगह कभी जूते के बारे में अब वो चीज तो पहली वाली कॉमन हो गई है कि कुर्सी खाना कोई अंग्रेजों के खाने की अलामत नहीं है, बल्कि सभी लोग खाते हैं। इस बात को भी नोट कर लें कि कोई भी चीज अगर ऐसी होती है कि जो किसी का सिंबल हो इस जमाने में और वो सिंबल खत्म हो जाए तो फिर ऐसी चीज में शरीयत जो है ना वो फिर आजादी देती है। मिसाल के तौर पर मौलाना थानवी से मसला पूछा गया, उस वक्त पूछा गया 1932 में कि साहब यहाँ पर जो है फ्रांस, यूरोप, इन सब इलाकों में टाई के बारे में ये था कि टाई जो है ना ये एक क्रिश्चियन के ड्रेस की अलामत है कि टाई लगाने वाला क्रिश्चियन है। सवाल पूछा गया कि मौलाना यहां पर अब ऐसा नहीं रह गया है, 1932 की बात बता रहा हूं आपको। उसने पूछा कि हजरत यहां पर ऐसा नहीं रह गया है, सभी लोग टाई लगा रहे हैं। तो मौलाना ने कहा कि सब लोग टाई लगा रहे हैं तो फिर टाई के नाजायज होने का हुक्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो वजह बयान की गई थी वो क्या थी कि किसी एक कौम का सिंबल है,
اور آپ को समझाने की एक बात करता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर सरदार जी का साफा है, सरदार जी का साफा आज भी उनका साइन है। कोई मुसलमान वैसे पगड़ी नहीं बांध सकता जैसे सरदार जी पगड़ी बांधते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरी दुनिया में एक अलामत है, उसी तर्ज पर वो पगड़ी बांधते हैं। लिहाजा किसी मुसलमान को, हालांकि हमारे यहाँ भी अमामा बांधना सुन्नत है, लेकिन आप उस तरीके पर नहीं बांध सकते जैसा उनकी बंधी हुई है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि सभी लोग वैसे बांधने लगे और न पता चले कि क्रिश्चियन है या सरदार जी हैं, तो फिर ऐसी शक्ल में क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये टाई का और खाने कुर्सी का मामला है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज गरम खाना खाने से मना फरमाते थे। दोनों रवायतें हैं। एक मरतबा इब्न माजा की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नॉर्मल गरम खाना रखा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा लिया। तेज गरम खाने से जो मुराद है वो ये है कि खाने में भाप निकलती रहे और बंदा लेकर के क्या है, खाता रहे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। लेकिन अगर कोई जो है वो खाना हल्का सा गर्म है, खासकर सर्दियों में, तो हर आदमी चाहता है कि थोड़ा सा खाना गर्म रहे। तो इब्न माजा की रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोतदल गर्म खाना फरमाया। खाने में सूंघने से मना फरमाया है। आपने फरमाया कि ये जानवरों की अलामत है। ज्यादातर जानवर ऐसे होते हैं कि खाना खाने से पहले क्या करते हैं, उसको सूंघते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि खाना सूंघा जाए। हाँ, अगर आपको ये डाउट है कि खाना खराब हो गया है, वो सूंघना एक अलग सूंघना है, उसके लिए सूंघा जा सकता है। लेकिन ये कि महज जो है खाना, जो भी खाना है उसको सूंघा जाए और फिर खाना खाया जाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया। इसी तरीके से डायरेक्ट बर्तन को सूंघने से भी मना फरमाया गया। मतलब खाना नहीं सूंघा जा रहा है, पूरा बर्तन उठा करके सूंघा जा रहा है, ये भी मना किया गया है। तो इससे भी जो है वो परहेज करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इब्न माजा की रवायत है, जो बर्तन में सूंघने से मना किया गया है। कंजुल उम्माल में भी रवायत है। फूंक मारने से मना किया गया है। उमूमन ज्यादातर जो है, मतलब जैसे खाना गर्म आ गया है तो प्लेट में बंदा क्या कर रहा, फूंक मार रहा है, या चाय बहुत गर्म आ गई है, फूंक रहा है और फिर उसको पी रहा है। ये दोनों शक्लें मना है। खाने को आप ठंडा अगर करना भी चाहते हैं तो आप प्लेट से, चम्मच से, किसी चीज से उसको फैला दें, खाना ठंडा हो जाए। लेकिन ये कि फूंक मारकर खाना जो है ठंडा करना मेडिकली लिहाज से भी गलत है। तो उसको जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि खाने में फूंक मारी जाए। ये इब्न माजा की रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रवायत है कि खाना के बारे में खाने को बुरा कहने से मना फरमाते थे। एक खाना आपको नहीं पसंद आया, आप छोड़ दें, ना खाएं। लेकिन ये कि खाना को बुरा कहें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना फरमाते थे। ये अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ रिस्क है, आपको नहीं पसंद है आप ना खाइए, लेकिन बुरा नहीं कीजिए। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे खाने पर। तो एक गोह जानवर होता है, तो वो गोह जो है वो तल के रखा हुआ था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या है, और खाने में ये बात भी अच्छी है, जो बात आपको समझ में ना आए, खासकर नए इलाके में हो, तो ये मालूम कर लें कि क्या है ये खाना। ऐसा नहीं है कि जो रखा है आप खाना शुरू कर दें। ये भी आदाब में से खाना से कि खाना के बारे में ये मालूम हो जाए। आपके अपने इलाके के हैं खाने तो कोई बात नहीं है, आपको देखते आइडिया लग गया। लेकिन अगर किसी ऐसे इलाके में खाना खाया जा रहा है जहां पर आइडिया नहीं लग रहा है, तो मालूम करना चाहिए खाना क्या है। तो वो जब नजर आया तो उन्होंने पूछा क्या है, तो कहा गो है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्लेट को हटा दिया सामने से। खालिद बिन वलीद ने खाया। इसीलिए अहनाफ के नजदीक जो है ना, वो खाना मकरूह है। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने को पसंद नहीं फरमाया, लेकिन बोले कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि खाने की बुराई करना क्या है, मना है। ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आपको नहीं पसंद आया है, आप टच न करें, छोड़ दें, ठीक है, लेकिन ये कि इसकी बुराई नहीं करें, इससे मना फरमाया गया है। खाने में इस बात का भी ये बहुत ज्यादा हम लोगों के अंदर गलती पाई जाती है। मिसाल के तौर पर रोटी लाकर रख दी गई खाने और सालन अभी आ रहा है, या ये कि रोटी नहीं है, सिर्फ चावल रख दिया गया है और सालन अभी नहीं आया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाकिम की रवायत है कि इससे मना फरमाते थे कि आप खाने का इंतजार करें। जो आ गया है सालन को छोड़कर, रोटी या चावल आ गया है या बसाओं का सलाद ला करके रख दी गई है, आप जो आ गया है ना, तो उससे शुरू कर दे खाना।
हम ये समझते हैं जब तक पूरा दस्तरख्वान न लग जाए तब तक हम खाना नहीं शुरू करें, ऐसा नहीं है। बल्कि इस्लामी तरीका ये है कि खाना अगर आ गया है, क्यों, अगर खाना रखा हुआ है और आप खाना नहीं शुरू कर रहे हैं तो मतलब ये है कि खाना हमारा इंतजार करें, ये चीज अच्छी नहीं है, बल्कि हम खाने का इंतजार करें, ये होना चाहिए। तो कोई चीज ऐसी आ गई है जो खाई जा सकती है दस्तरख्वान पे, रोटी आ गई है मिसाल के तौर पर, सालन आ रहा है तो रोटी ही तोड़कर जो है वो खाना शुरू कर दे, सलाद रख दी गई है सलाद को खाना शुरू कर दे, तो सालन का इंतजार करने से आप मना फरमाते थे। तो इसलिए दस्तरख्वान इसी तरीके से दस्तरख्वान से उठने से मना फरमाते थे। अब आज तरीका क्या है कि बंदा पहले उठता है, दस्तरख्वान बाद में उठाया जाता है। हालांकि इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे, कहते थे पहले दस्तरख्वान उठाया जाए बाद में बंदा उठे, क्योंकि बंदा अगर दस्तरख्वान छोड़ रहा है तो आप बेनियादी दिखला रहे हैं रिस्क से। बात नहीं समझे पहले, हम पहले उठे तो हमने अपने आप को ग्रेड जाना और दस्तरख्वान को हमने क्या समझा, नीचा जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमाते थे कि नहीं, पहले जो है ना बंदा नहीं उठे, पहले कौन उठाया जाए, दस्तरख्वान उठा लिया जाए, उसके बाद बंदा उठे। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग खाना खाने से मना फरमाते थे। अलग अलग से मुराद ये है, दोनों माना लिया जाता है इसका। ये तिबरानी की रवायत और इब्न माजा की रवायत है कि जैसे घर में औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, हर आदमी अपनी अपनी प्लेट लेकर के अलग अलग बैठकर खाना खा रहा, ये इस्लामी तरीका एकदम नहीं है। बल्कि होना ये चाहिए, मिसाल के तौर पर मर्द बाद में आ रहा है, औरतें तो औरतें ही एक साथ बैठ के खा लें, फिर मर्द अगर ऐसा है कि नहीं आ पा रहा चलो वो अकेले खा ले, लेकिन हर आदमी अपने अपने टाइम पे जाके निकाल के खा रहा, ये इस्लामी तरीका नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया। क्यों, वैसे भी आप देखें जब अकेले अकेले आप खाएंगे तो खाने की बरकत क्या होती है, खत्म हो जाती है। एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए, एक माना इसका ये लिया गया। दूसरा ये लिया गया है कि मेहमान अगर है घर में तो फिर ऐसा नहीं करें कि मेहमान को अलग कर दे खुद खा लें, या मेहमान से कहा अच्छा आप खाइए मैं बाद में खाऊंगा, ऐसा नहीं, मेहमान के साथ बैठ जाना चाहिए और खाना खाना चाहिए, अलग अलग खाना नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से दावत के सिलसिले में बुखारी की रवायत है कि दावत अगर दी जाए और आपके पास कोई उज्र नहीं है तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे जिसने दावत नहीं कबूल की उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। दावत को कबूल करना चाहिए। अच्छा, दोनों चीजों में फर्क है, दावत का कबूल करना अलग चीज है और दावत में जाना अलग चीज है। एक आदमी पहुंचा, आपको इनवाइट कर रहा है, आप उसी वक्त नहीं मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा, मैं नहीं आ सकता हूं, ये बात नहीं करें, बल्कि उसकी दिलजोई करें, बोले ठीक है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कबूल करें दावत को। फिर अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर नहीं कबूल कर रहा है दावत तो उसकी वजह उसको मालूम होना चाहिए कि हम क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उसको महसूस हो रहा है इनके यहाँ खाने पे जाएंगे तो इनके यहाँ म्यूजिक बजती है, इस वजह से नहीं जा रहा, या ये बंदा अपने आप को बहुत बड़ा मुतकब्बिर है, या ये खाना ऐसे लोगों को किया गया है कि गरीबों को इसको कट किया गया है, कोई वजह उसको शरई होनी चाहिए दावत ना कबूल करने की। लेकिन अगर कोई शरई वजह नहीं है तो फिर ये इस्लामी तरीका है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक बनता है कि अगर वो आपको दावत दे तो हम उसकी दावत कबूल करें। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अबू दाऊद की रवायत है कि मुतकब्बिरीन अगर दावत दे तो दावत से इनकार कर देना चाहिए साफ साफ। इसी तरीके से आपने फरमाया फासिक की